morning to one and all. Today, we have gathered here to celebrate this wonderful day so that the best profession of the world can be respected. Today, on this auspicious occasion of Teachers' Day, we would like to express our gratitude to all teachers present here and all over the world. माता एवं पिता के बाद शिक्षक ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। हम सभी के जीवन में सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है, जो कि हमारे शिष्य काल के समय हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। Light fades away darkness, symbolizes knowledge and wisdom. Now, we will have our traditional lamp lighting ceremony as tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. For this, I would like to call upon our Honorable HOD Sir, Dr. Manish Pundlik. I consider it a great honor to welcome Ms. Shalini Tiwari onto the stage to share her gratitude towards teacher through her speech. गुरु बिना ज्ञान मिले, गुरु बिना दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश. A very good morning to all respected teachers and my dear fellow friends. We are gathered here to celebrate the auspicious occasion of Teachers' Day, that is birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, one of the greatest scholars of India and the second president of India. Words fall short when I start to describe how important a teacher plays role in any student's life. शिक्षक हमारे समाज की मजबूत नींव रखते हैं। वे छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने, निर्माण करने और उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं. As Dr. Abdul Kalam would have said, I believe there is no other profession in the world that is more important to society than that of a teacher. Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students. The aim of the day is not to appreciate the efforts of teachers community, but also to raise awareness about the significant role of teachers
in building the character of child and scope of improvement in their conditions. To celebrate the efforts of our teachers, we have planned to make this day memorable for you all. Many students have prepared different performances for you. I hope we can bring a smile on your face throughout the day. Now I want to conclude it with poetic lines. कोरे कागज को अखबार बनाता है, गुरु को जिंदगी का हर हिसाब आता है। रंग बिरंगे फूलों से वो संसार को एक सुंदर बाग बनाता है। वही तो है जो तारों को भी रोशनी देकर खुद सूरज बनकर जगमगाता है, खुद सूरज बनकर जगमगाता है। थैंक यू। Thank you so much, Shalini, for your kind words. Now, I would like to call upon Shraddha Nema to showcase her melodious voice in front of us. आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजान ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। Pleasant, soothing performance it was. Thanking her and moving forward, I would like to hand over this mic to Shalini for proceeding. Throughout their teaching career, a teacher provides bundle of knowledge to students and share their experiences and help them to shine bright in their future. This is what a best gift teacher can provide to their students. In return, students can never repay their teachers. But a little we have tried here to repay with love and gratitude. So now, I would like to call Bhumika Singh and Sudhanshu to provide token of love to Dr. Manish Pundlik sir. Please sir. Thank you sir. So in this sequence, next I would like to request Mrs. Kavita Chaudhary ma'am to accept this gift from us. Thank you ma'am. Now may I please invite Mr. Bharat Singh to accept this present. Next, I would like to
call Mr. Rakesh Verma sir to receive a gift. Thank you, sir. Now I request Mr. Anand Gandhi sir to receive this token of love from us. Next, may I please invite Mr. Fakaruddin sir to receive a present. Thank you, sir. Next, may I please invite Dr. Nazia Hussain to accept the token of love from us. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. They are the key to the door called success, and we are very thankful to everyone today and every day. A mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see in yourself and helps bring it out of you. With this, I would like to request our Honorable HOD sir to come upon and motivate us through his encourageous words. Good morning, one and all. Today is not my day, but still you are calling me. So thank you all of you. Happy Teachers Day to all my dear teachers, office and staff members, and thanks to my dear students. वैसे तो ये दिन जो है टीचर्स डे का बचपन से मनाते आ रहे हैं, और जब बच्चे आए थे मेरे पास में कि सर टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चों के मन में ऐसा आता है कि हाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है। और मैं चाहता हूँ कि टीचर्स डे जो है वो पूरा 365 डेज सेलिब्रेट होते रहे, थ्रू आउट लाइफ होते रहे, क्योंकि मैं बीइंग ए स्टूडेंट हमेशा जब भी मॉर्निंग में निकलता हूँ तो गुरु को नमस्ते करके ही निकलता हूँ। तो मेरे लिए हमेशा 365 डेज जो है वो हमेशा से ही जो है वो टीचर्स डे ही रहे, और मेरी इच्छा रहेगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो भी जो है वो हमेशा मन में ऐसा मन में ऐसा रख के रखे कि हमेशा मेरा हर डे टीचर्स डे ही है। मैं दो बात बोलूँगा कि एक तो मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मैं चाहूँगा कि दो बातें रखे कि एक लर्निंग जो है वो हमेशा रख के रखे थ्रू आउट लाइफ टाइम, क्योंकि लर्निंग अगर आपने बंद कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 2 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है, या आपका 5 इयर्स का कोर्स है और माय जॉब इज़ ओवर, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल वाला काम हो जाएगा। आपको जब भी आप जॉब में भी रहोगे तो आपको थ्रू आउट टाइम लर्निंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की हमेशा एल्युमिनीज से बात होती रहती है, तो वो बोलते भी रहते हैं कि सर हम हमेशा नई टेक्नोलॉजी को ही सीख रहे हैं। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो लर्निंग डेली न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू पैरामीटर्स पे हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ रही है कि नए इसमें सीखने का, तो आप लोग भी जो है वो रेगुलर लर्निंग का रखें। और सेकेंड जो है वो लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहे, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम ऑनेस्ट रहे और ईमानदार रहे अपने लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारे ऊपर जो है वो हमेशा गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा रखे। और एक मेरे दिमाग में परसों एक बहुत अच्छा सा ख्याल आया था कि मैं हमेशा स्टोरीज मेरे दिमाग में रहती है, और मैं तो हमेशा तुम लोगों से बातें करते रहता हूँ, तो दिस इज़ नॉट टाइम फॉर मी, और फिर भी मैं दिमाग में आया था वो बात जरूर बोलूँगा कि एक गांव में क्या रहता है कि हमेशा शेर और बाघ आते रहते, तो वहाँ पर के जो युवा जवान लोग जो जंगल में जाते थे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो उनके लिए हमेशा खतरा जंगली जानवरों का रहता था और शेर और बाघ का भी रहता था। तो वहाँ पे जो एक बूढ़े व्यक्ति थे उनको पेड़ पे चढ़ना और उतरना सिखाते थे वो, और ही इज़ द यानी टीचर मान लो उनके लिए, वो उनके लिए तो वो हमेशा सिखाते रहता था। और
युवाओं को सिखाते थे कि ये आपके लिए प्रिकॉशनरी जरूरी है कि जैसे ही कुछ ऐसा आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन हो तो आप जो है इमीडिएट चढ़ जाए पेड़ के ऊपर। तो जब वो मैंडेटरी था सबके लिए सीखना। तो जब वो लास्ट डे था टीचर का, तो एक स्टूडेंट जब चढ़ा और जब वो एग्ज़ाम होती रहती है ना, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब चल रहे थे, तो जब भी बच्चे ऊपर चढ़ते और जब नीचे उतरते, तो जब वो थोड़े से इस हाइट पे रहते तो उसी समय टीचर जोर से उनको बोल रहा था गुरु की स्लो डाउन, मतलब थोड़ा आराम से, आहिस्ता से। तो हर एक को ही हुआ, तो बड़े कौतूहल का विषय बन गया कि भाई ये टीचर ऐसा क्यों बोल रहे कि यहाँ तक ऊपर इतने पेड़ पे, चिकने पेड़ पे हम ऊपर तक चढ़ गए, वहाँ से नीचे भी आ गए, और जब हार्डली 5-6 फीट 8 फीट तक हाइट रह गई थी, उसी समय टीचर हर एक स्टूडेंट को क्यों बोल रहा था। तो क्यूरियोसिटी वाइज स्टूडेंट्स ने जब टीचर से पूछा गुरु से कि ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप ऊपर चढ़ते हो वो आसान रहता है, क्योंकि आप में डर रहता है, एक महत्वाकांक्षा रहती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके कारण आप चढ़े जाते हो। पर जब आप उतरते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा, जब आप 8-10 फीट की ऊंचाई पे रहते हो, नीचे रहते हो, उस समय आप अति आत्मविश्वास में आ जाते हो, और जब अति आत्मविश्वास आ जाता है तो उस समय फिसलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो 8 या 10 फीट भी जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मेरे स्टूडेंट से भी यही हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि सफलता को चखो, ऊपर तक जाओ और बहुत ऊपर तक जाओ, यानी हाईली एम्बिशियस भी बनो, उसको मोटिव भी कर लो, पर सफलता का जब भी उतार और चढ़ाव चलते रहे तब थोड़ा सा संभल के करें। ठीक, वंस अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ माय फैकल्टी मेंबर्स और मैनेजमेंट की ओर से। और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम तुम लोगों ने ठहरा लिया। और ये देखो झील रहती है, ये कुछ बच्चे थे मेरे पास में आए थे ये लोग कि बोले सर टीचर्स डे तो सेलिब्रेट करना ही है। तो आपको अंदर का एक सीक्रेट और बता दूं कि मैंने दोनों ऑडी बुक करके रखे थे, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर ही हूँ। तो दोनों ऑडी बुक करके रखे थे। कविता मैडम भी मुझे बोली कि आप बच्चों को क्यों नहीं डिस्क्लोज कर देते हो कि आपके पास तो दोनों ऑडी आपने बुक करके रखी। मैंने कहा मैं बच्चों में देख रहा हूँ उनमें ज़ील है कि नहीं। टीचर्स डे सेलिब्रेट करना ये हमारा काम नहीं बोलने का, ये बच्चों के अंदर से होना चाहिए। तो मैं इंटीग्रेटेड एमसीए फर्स्ट सेम के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं या थर्ड सेम के या टोटल ओवरऑल जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स के, और जो बच्चे अभी बाद में यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो उन लोगों को भी मैं घर से जो है धन्यवाद दे देता हूँ। पर उन लोगों के लिए मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी बड़ी इच्छा रहती कि एक दिन तो टीचर्स के लिए निकाल के आए एटलीस्ट, देन दे शुड कम ओवर देयर। मैंने प्रीमियम ऑडी बुक कर के रखा था आप लोगों के लिए कि मुझे लगा था कि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर ये कल्चरल इवेंट होता तो शायद मुझे लगता, या क्या बोलते एक और डीजे ना, डीजे रहता तो काफ़ी भीड़ रहती। टीचर्स डे पे थोड़ी मुझे कम दिख रही है, पर शायद हो सकता है आप सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि सर हम 5-5 के बराबर है। तो आप लोग हमारी सबको हमारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा जो है सब तक पहुंचा दे। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. I am sincerely grateful for your part in our event, and your words means a lot to us. Now for next performance, I would like to call Sabal Pratap Singh. सभी को सुप्रभात। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को मैं करता हूँ सत सत प्रणाम। जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं कि आदर्शों की मिसाल बनाकर बाल जीवन संवारता है शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता है शिक्षक, नित नए प्रत्येक आयाम लेकर हर पल भविष्य बनाता है शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियाँ खूब मनाता है शिक्षक, पाप व लालच से डरने की धार्मिक सीख सिखाता है शिक्षक, देश के लिए मर मिटने की बलिदानी राह दिखाता है शिक्षक, प्रकाश पुंज का आधार बनकर कर्तव्य अपना निभाता है शिक्षक, प्रेम सरिता की बनकर धारा नैया पार लगाता है शिक्षक। सभी को धन्यवाद। What a great poem it was. Next, we are moving forward. Teachers are the pot of gold at the end of the rainbow. Like the colors of a rainbow fills the sky,
with joy and happiness. In the same way, teachers' presence and guidance molds the student into a better human being. Next, I request Mr. Sanjay Sharma sir to accept the present. Thank you, sir. Now, may I please invite Mr. Rohit Kumar Vyas to receive this token of love from us. Thank you, sir. Next, I would like to request Mrs. Harsha Chauhan to accept this gift from us. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Mr. Tarunesh Sharma to receive the present. Thank you, sir. Next, may I please invite Mrs. Nikita J. Nahar to accept gift from us. In a student's life, teacher is a multitasking educational rock star who lives to inspire and loves to encourage. They are kind of a big deal. With this, I would like to invite Adil Khan on stage to perform his part for the event. A very good afternoon to all of you. टीचर्स हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अगर SDLC जैसा हमारी लाइफ में कुछ होता तो यकीनन टीचर्स उसके डेवलपिंग यूनिट में आते हैं. ABC से लेकर इन फ्लोट डबल तक सब हमें वही सिखाते हैं. कभी वो हमारे दोस्त बनकर हमको समझते हैं, तो कभी हमारी माँ बनकर हमको प्यार करते हैं, तो कभी कुछ गलत करने पर बाप की तरह हमें डांटते भी हैं. अगर एक स्टूडेंट की लाइफ देखा जाए तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो अपनी एक टीचर के साथ स्पेंड करता है. तो इसी एक्सपीरियंस को मैंने लिखते हुए कुछ लिखा है. मतलब एक स्टूडेंट जब पहली बार स्कूल जाता है जब से, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरी माँ से मुझे अलग करने वाली आप थी, मेरी माँ से मुझे अलग करने वाली आप थी, पर मेरी दूसरी माँ भी बनने वाली आप थी, जिसने एक छोटे से रोते हुए बच्चे को हंसना सिखाया था. और उसी ने यह सिखाया कि स्कूल बोझ नहीं होता. मेरी लाइफ की पहली क्रश भी आप थी, जिन्हें देखकर ये लगता था कि यार ये मैम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं और हम इन्हें यूं ही देखते रहें. ये सब जब तक था, ये सब जब तक था जब तक लाइफ में डर नहीं था, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी में मैम की जगह सर ने ली. मेरा सबसे बड़ा खौफ आप थे. अगर पापा के बाद मैं किसी से डरा हूं तो सबसे ज़्यादा आपसे. आप मेरे दुश्मन थे, क्योंकि कभी होमवर्क ना करके आने पर क्लास के बाहर कर देना, तो कभी फॉर्मूला याद ना आने पर 50 बार लिख कर लाना. मन तो होता था कि कह दूं सर कभी स्कूल के बाहर मिलो. पर वही सर मेरे बाप जैसा था, क्योंकि आखिरी वक्त तक उसने मुझे पढ़ाया था. रात रात भर जागकर उसने मेरे डाउट सॉल्व करे थे, और बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पर सबसे पहला कॉल अगर किसी का आया था
तो वो सर थे जिसने फिगर से मेरे को कॉल किया था। ना जाने क्यों, खून का रिश्ता नहीं था हमारा, पर क्यों खून से ज़्यादा रिश्तों से सर हमें चाहते थे। वो एक टीचर ही है जो ऐसा कर सकता है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा आप सबको। कॉलेज में आने से पहले एक मिथ होता है कि जो डीन्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो HODs होते हैं, वो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट होते हैं एज यूजुअल, क्योंकि इसमें हमारी भी गलती नहीं, हमारी सोसाइटी भी उन्हें ऐसा ही बताती है। अब जैसे आप 3 इडियट्स के वायरस को देख लीजिए, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज चलेगा, इसको छोड़ गए। और ऐसा नहीं था, मेरे एक भाई थे, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं उन्हें बता रहा था कि कॉलेज जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि यार कुछ भी हो HOD से पंगा मत लेना। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि यार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बोले बहुत बेकार होते हैं। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया आपके साथ? तो बोलते यार 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया मेरे को। मैं आई वॉज शॉक कि ऐसा क्या हो गया। मैंने पूछा आपने करा क्या ऐसा? बोलते कुछ नहीं, बस सर के केबिन में पटाखा फोड़ दिया था। पर लिटरली जब मैं भी सर से नर्वस रहता था, बात करने में डरता था कि यार HOD है, कुछ होगा कि नहीं। तो मेरी एक क्वेरी थी, एक प्रॉब्लम थी जिसको लेके मेरे को सर के पास जाना था। बहुत नर्वस था उस टाइम पे। तो वो क्वेरी लेके जब मैं गया तो सर ने एज अ HOD उस क्वेरी को सॉल्व नहीं करा, एज अ टीचर भी नहीं करा। सर ने मुझे एज अ फ्रेंड गाइड करा, हर चीज़ बताई और ये भी बताया कि बेटा तू ये कर ले, तेरा 5 साल का काम हो जाएगा इस चीज़ से। तो हेड्स ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कहना बहुत कुछ था पर वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने आप जैसे टीचर्स के लिए, अर्ज करना चाहूँगा। कलम थी हाथ में, लिखना सिखाया आपने। मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस पुतले थे, शावीर देके इंसान बनाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर मैं इस ओकेशन पे आया हूँ तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब मैं कल एक स्पीच लिख रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि अगर तू परफॉर्म करे तो ज़रूर बनना। सर अक्सर हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन जाता है, या तो इंजीनियर या डॉक्टर या बिजनेसमैन। पर हम पीछे पलट के कभी टीचर्स को नहीं देखते हैं, या एक कहें कि तकब्बुर आ जाता है कि यार कुछ स्टूडेंट्स को कि यार मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, वो टीचर 50,000। आज मेरे पास उससे ज़्यादा नॉलेज है जो उसके पास नहीं है। ऐसा होता है कुछ के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप जाएं, अपनी पुरानी टीचर्स से मिलें, अच्छा लगता है उन्हें। मैं भी आज खुद सेंट पॉल जाऊँगा वापस अपनी टीचर से मिलने, क्योंकि एक टीचर इकलौता वो शख्स है आपके माँ बाप के बाद जो वाकई में चाहता है लिटरली कि आप आगे बढ़ें और आपको राह दिखाता है। वरना आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोई ना कोई मिलेगा ही आपकी टांग खींचने के लिए, पर टीचर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। वो आपको हमेशा चाहेगा कि उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो। इसलिए मैं कहूँगा कि जाएं, अपनी पुरानी टीचर से मिलें। इसी पे हज़रत इमाम अली का एक कोट है मैं जो शेयर करना चाहूँगा। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, अगर तुम बादशाह हो तो भी खड़े होकर अपने माँ बाप और उस्ताद को सलाम करो। शुक्रिया। Thank you so much, Adil. It was great to listen you. As per me, our life is a song and our thoughts are music that eventually gives us the sensation of happiness. To embrace this moment, I would like to call upon Pankaj Sahu for the next performance. 2 लाइन में टीचर्स के लिए बोलना चाहूँगा। गुरु को वंदन है, गुरु को अभिनंदन है, गुरु के चरणों की धूल भी हमारे लिए चंदन है। इसी के साथ मैं अपना एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहूँगा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे साथ गाएं। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे कहीं आना जाना भूल गए। बस 8 पहर इन आँखों में वो चंचल चेहरा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कौन गाइस? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद
का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। मान बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, हाँ देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। After this great performance, I would like to invite Ms. Priya Rawal to share her views in front of us. सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण एवं सभी मेरे सहपाठी भाई बहनों, सुप्रभात। मेरा नाम प्रिया रावल है। मैं MCA 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व होता है। शिक्षा के बिना जीवन को सरल और सुगम बनाना नामुमकिन है। ज्ञान ही इंसान को जीने योग्य जीवन की सीख देता है। जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को आकार देता है और कच्ची मिट्टी को तपाकर उसके विकारों को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों के अवगुणों को दूर कर काबिल बनाता है। शिक्षक ज्ञान का वह अविरल स्रोत है जो लाखों छात्रों के भाग्य का निर्माण करता है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जन्म के बाद उसकी माँ उसकी पहली गुरु होती है जो अक्षरों का बोध कराती है। वही दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें काबिल बनाते हैं और सांसारिक बोध कराते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में विशेष योगदान रहा है। गुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। मैं आप सभी को कबीरदास जी के एक दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा समझाना चाहूंगी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात गुरु सर्वश्रेष्ठ एवं महान है। धरती के सभी कागजों को एकत्रित कर लिया जाए, वन की सभी लकड़ियों को एकत्रित कर लिया जाए, सभी समुद्र के पानी की स्याही बना ली जाए, तब भी कागज और स्याही कम पड़ेगी गुरु की महिमा को लिखने के लिए। ऐसी महिमा है हमारे गुरुओं की। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की महिमा कितनी अधिक एवं आवश्यक है। गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों से करना मुश्किल है। अब हम देखेंगे शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को समाज के विकास व उनके अनकहे योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह दिन देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 1962 में जब डॉक्टर साहब ने उनकी उपाधि के लिए पद ग्रहण किया था तो उन्होंने तब उनके सखी संबंधियों ने उनसे कहा था आपके जन्मदिन मनाने की अनुमति दीजिए। तब डॉक्टर साहब ने उनकी सादगी दिखाई। उन्होंने कहा जन्मदिन अलग से मनाने की ज़रूरत नहीं, इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जी, इसलिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय प्यारे प्यारे टीचर्स एंड थैंक यू so much for being part of us. Thank you sir. Being a teacher is a lot like being a rock star. You work hard to keep the attention of distracted crowd. Your fans freak out when they see you in public. Groupies line up to follow you everywhere. You hear your name being called out all the time. Wish you all a very happy Teachers Day. So, to the respected teachers, accept this present as a small measure of appreciation for all the support and hard work. Now, I would like to call Saloni and Vinit
to present a gift to Mrs. Nikita Sharma ma'am. Thank you ma'am. Next, I would like to call Dr. Manoj Kumar Khanduja sir. Thank you, sir. Now, I would like to call Mrs. Umul ma'am on the stage. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Mr. Vivek Rai, sir, to accept the gift. Thank you, sir. Now, I would like to invite Mrs. Nidhi Gupta, ma'am, to accept the gift. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Mr. Shailendra Gupta, sir, on the stage. Thank you, sir. It is the concept of vivacious, applauding, imaginative blend and acts of our gifted students to showcase their talent on stage. Therefore, next I would like to call Sabal Pratap for his performance. As we are celebrating the Teachers' Day today, there is a teacher who is our teacher by birth. And on this occasion, how can we forget about her? And for her, I have written something that कभी डांटती तो कभी पुचकारती है माँ, कभी डांटती है तो कभी पुचकारती है माँ, हमारे जीवन और भविष्य को संवारती है माँ। तो माँ के ऊपर एक पोएम है जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो उसकी लाइनें कुछ यूँ हैं कि मदर यू आर माई फर्स्ट टीचर, मदर यू आर माई फर्स्ट टीचर, I will always remain your follower. You are so patient and kind. You are so patient and kind that help me remain focused and inclined. In academics, you were a strict master. For all my success, you were my ladder. When I feel low, whenever I feel low, you become my counselor, my best friend and philosopher. For maintaining relations, a wonderful guide, your advices made them a smooth glide. If I had any problems to deal, I had the liberty to your appeal. I wonder, are you unaware of any subjects? I wonder, are you unaware of any subjects? It amazes me that you are always correct. Oh mother, you will forever remain my guru. Oh mother, you will always remain my guru. I will always remain indebted to you. So, आज के ओकेज़न पे हम माँ को भूल नहीं सकते, इसलिए मुझे ये पोएम एक लिखनी पड़ी माँ पे। प्लस अगर ये आप लोगों को पोएम अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग अपने हमारे टीचर्स और जो भी मेरे रेस्पेक्टेड बैचमेट्स हैं सब लोग आइज़ क्लोज करके एक बार सब लोग अपनी माँ को याद करें, जो भी जिसकी भी माँ यहाँ पे हो या ना हो, मतलब पास में हो या ना हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं सब लोग घर से अपने दूर रहते हैं। तो एक बार माँ को याद करें और हैप्पी टीचर्स डे बोलें सब लोग अपने माँ को। थैंक यू। Thank you, Sabal.
For next performance, I would like to invite Shrishti Mandloi. Good morning to all the teachers and all my friends. I have here a wild card entry here. Right on the spot I'm speaking here. So I have a huge respect for my teachers, and also that I want to share something with you that Guru Govind दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। अभी जब हम नीचे आ रहे थे तो हमारे जो एक रिस्पेक्टेड टीचर थे वो हमसे कह रहे थे कि मैं क्या भगवान हूँ, तुम इस तरह से पूछ रहे हो। तो वही चीज़ है कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं और मुझे नहीं पता कि मुझे किसके पैर छूना चाहिए। तो गुरु बलिहारी आपकी कि आपने गोविंद बता दिया मुझे। एंड जैसे कि अभी एक आए थे स्पीच देने के लिए कि हमें अपने टीचर्स के लिए पीछे मुड़ के देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, तो उसी से मुझे अपने स्कूल टाइम के जो टीचर्स थे उनकी याद आ गई। क्योंकि आज जो मेरी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो नहीं पाई है, कहते हैं कुछ कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो उन टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हमेशा हमें इन चीज़ों को समझाया था। उनकी वो स्ट्रिक्टनेस जब याद आती तब लगता था यार कि नहीं, वो जो समझाया हमें ऐसा लगता था कि बहुत सरप्राइज कर दिया है, हमें बुरा भी लगता था एट दैट टाइम। बट उनके स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए ही आज हम यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। एंड अगर मैं एसओसी में भी आके बात करूँ तो मेरे साथ फर्स्ट सेम में ये बात थी कि कविता मैम का जब लेक्चर अटेंड करना होता था तो मुझे डाउट पर पूछने में ना बहुत हिचकिचाहट है। मुझे ऐसा लगता था मैम डांट ना दे, मैम डांट ना दे। बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैम तो बहुत ही अच्छे हैं एंड ऑलवेज हेल्प करते हैं मैम। सो टीचर्स जो होते हैं नेशन को ना बिल्ड करते हैं, उनसे सिर्फ टीचर्स नहीं, उन्हें नेशन बिल्डर अगर हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो इट वॉज अ लिटिल स्पीच फॉर today's day and we should respect them for all the 365 days. So thank you very much for this speech. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much, Shrishti. Now it's time for teachers to showcase their talent. For that, I would like to request Fakhruddin sir to come over and sing a song for us in his mesmerizing voice. जनरली मैं सॉन्ग्स गुनगुनाते रहता हूँ, इतना मेरा कमांड नहीं है। जनरली मेरे पास मोस्ट ऑफ टाइम जब भी मैंने अपने सॉन्ग्स को प्रेजेंट किया तो स्टूडेंट्स आकर मतलब मुझे बैक साइड पर ऐसे मतलब वॉइस आई है कि सर क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन सर का ये रूप हमने बहुत कभी देखा नहीं है। तो जनरली इसी तरह से मैं कभी सॉन्ग प्रेजेंट कर देता हूँ। तो सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, किशोर दा का है। पुराने सॉन्ग्स में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे नए सॉन्ग्स ज़्यादा आते नहीं है। ठीक है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों नी से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। नाउ ये लाइन में अपनी वाइफ, सो कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी होल में यूँ कह सकते कि हर पॉइंट पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो ये लाइन में उनको डिवोट करता हूँ। यूँ तो हसीनों में महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नई कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. It was great to listen you. Now, to make this atmosphere more melodious, I would request Sanjay sir to sing for us. एक हेमंत का गाना है पुराना प्यारा सा, वो थोड़ा 2 लाइन आपको बताऊंगा। मगर लगता
है कुछ ऐसा न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न हम तुम्हें जाने, ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की सदा। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। Thank you so much, sir. Now we would like to present a short video for our teachers. डियर टीचर्स, दिल से शुक्रिया हमारा भविष्य सजाने के लिए। आपकी डांट कड़वी तो लगती है, लेकिन ज़रूरी है हमें गलत से बचाने के लिए। हमें झेलना बिल्कुल आसान नहीं, फिर भी अकेले कैसे कर लेते हो? लाइफ की टेंशन्स, वर्कलोड, हमारी शरारतें एक साथ कैसे संभाल लेते हो? एक पॉइंट पे गुस्सा तो आता होगा, फिर भी प्यार से समझाते हो। पेरेंट्स के बाद एक आप ही हो सेल्फलेस, जो बिन मांगे सब कर जाते हो। कभी गिर जाए हम तो आप होते हो उठाने के लिए। जब खुद से भरोसा हटने लगता है तो आप आते हो मोरल बढ़ाने के लिए। सच कहूँ तो आपसे अच्छा मेंटर हमें कभी नहीं मिला। हमारी वो बातें भी सुनी जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। ये आप ही का सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आपने ही ये खुला आसमान दिया जिसमें पंख फैला के आज हम उड़ पा रहे हैं। आपने हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया, आगे आने वाली हर परेशानी के लिए तैयार किया। क्लास में अपने किस्से सुना के खूब एंटरटेनमेंट कराया है। जब पढ़ाई का मन नहीं होता तो इधर उधर की बातें करके हंसाया है। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, हमने मस्ती के अलावा आपकी डिसरिस्पेक्ट भी की। कभी माइक ऑन करके कमेंट्स करे तो कभी शेयर्ड स्क्रीन पे डूडलिंग कर दी। फिर भी आपने कभी पनिश नहीं किया। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन हमने आपका दिल तो दुखाया है ना, तो उसके लिए आपसे तहे दिल से माफी है। शुक्रिया करूंगी आज उस खुदा का भी जो दिया है आपके जैसा गुरु। डियर टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। डियर टीचर्स, दिल से शुक्रिया। जलते हैं आप दिए की तरह, जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से शिक्षक हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। हर परेशानी में, हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। So, I would like to call Sandeep and Raksha to present the gift as a token of gratitude to Mr. Jitendra Sharma. Thank you, sir. Now, I would like to invite Mr. Balram Prajapat to accept the gift. Thank you, sir. Next, I would like to call Mr. Sumit Chaurashia, sir, to accept the gift. Thank you, sir. Now, I would like to call Mr. Ashish Sharma, sir,
to accept the gift. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Tarachand Tanwar sir on this stage to accept the gift. Thank you, sir. Next, I would like to call Mr. Bhupendra sir on this stage to accept a gift. Thank you, sir. A heartfelt thank you to all our teachers for accepting the present. Thank you. Now, it's the time to do something fun that can bring smile on everyone's face, and teachers can also get a chance to showcase their talent because it's a game time and that game is passing the parcel. अब हम यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये गेम है पासिंग द पार्सल। इसमें टीचर्स के पास एक पार्सल होगा जिसको उन्हें पास करना है एक दूसरे को। जब भी म्यूज़िक रुकेगा, जिस भी टीचर के पास वो पार्सल होगा उनको बाउल में से एक चिट उठानी है, लेकिन उसमें जो भी परफॉर्मेंस होगी उन्हें खुद नहीं करना है, उन्हें चूज़ करना है कि वो परफॉर्मेंस कौन सा दूसरा टीचर करेगा, और जो टीचर परफॉर्मेंस कर चुका होगा वो रिपीट नहीं होगा, जैसे कि मतलब जो सारे टीचर्स हैं उनकी चांस आ सके। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਗੱਜਣ ਪਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ। मैंने इसलिए रोक लिया था क्योंकि वो सुन लिया था कि परफॉर्म मुझे नहीं करना, मुझे किसी से करवाना है। और किसने बोला भी था ना अभी बीच में कि एचओडी सर से पंगा मत लेना, तो जैसे दिखते हैं वैसे ही है, वैसे भी हो। तो मैं ये कितने लोगों से करोगे तुम? 5 टोटल। सिंगिंग का काम मिला हुआ है, तो संजय सर और फकरुद्दीन सर तो कर चुके हैं सिंगिंग का काम। मुझे ऐसा लगता है कि सिंगिंग का काम जो है वो निकिता शर्मा मैडम कर लेगी क्या? ये डांस करती है। नाजिया मैडम से तालियां बजा जाए, नाजिया मैडम सिंगिंग का काम करेगी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now our second round starts here. हाँ, पार्सल पास। हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। शायरी का आया है, शायरी तो आनंद गंदे सर को बोलूँगा मैं। अच्छी शायरी बोलते हैं।
हेलो। देखिए, टीचर्स के साथ में हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि एकदम से स्पॉन्टेनियसली उनके पास में कुछ आ जाता है कहने के लिए, है ना। लेक्चर हो तो ठीक है, थोड़ा सा तैयार करके रिव्यू करके गए, अब एकदम से क्या बोले। लेकिन फिर भी आप शायरी के लिए बोला है तो एक आध दो शेर तो बोलना ही पड़ेंगे। तो ऐसा स्पॉन्टेनियसली एकदम से कुछ कहने के लिए आ जाता है, तो उसके ऊपर ही एक शेर कह रहा हूँ कि कहते तो ये कहते, कहते तो वो कहते, कहते तो ये कहते, कहते तो वो कहते, सब कहने की बातें यारो, कहते तो क्या कहते। लेकिन अब कहने के लिए खड़ा ही किया है तो एक शेर और ज़रूर कहूँगा, वो सब आप लोगों के लिए है और सबने सुना हुआ भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो बहुत तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। Thank you, sir. Now it's our third round time, so please pass the parcel. जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जान Guess the song है सर। अच्छा Guess the song आया पर टास्क निकिता शर्मा। इश्क जैसे है आंधी, इश्क जैसे है आंधी, इश्क है एक तूफा, गाएगी नाजिया मैम। तेरा दिन मैम ये एग्जैक्ट लाइन मतलब उस सॉन्ग के लिरिक्स है, पर हमें उसका गाने का नाम बताना है आपको। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। यस, ये यही वाला सॉन्ग है। अब हम हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कान वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा। It's dance. थैंक्स, मैं तो बच गई एटलीस्ट। नो आइडिया कि कौन सी फैकल्टी। अच्छा, भरत सर आप ही का नाम आया है ऑडियंस में से। ओके 1 मिनट। भरत सर के साथ राकेश सर एक बार पहले भी शायद परफॉर्म कर चुके हैं। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस
बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राउंड की तरफ। हेलो, मेरा टास्क सिंगिंग है। तो सिंगिंग में नाजिया मैडम ने हो गया है और संजय शर्मा सर का भी हो गया है, और बच्चों ने रिपीट करा था कि जिनने एक बार कर लिया वो डबल नहीं कर सकता है। तो तरुणेश वर्मा सर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू। Thank you, sir, for gracing us with this marvelous song. So now we are moving forward for our next round. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब। टॉपिक है मेमोरीज ऑफ स्कूल कॉलेज लाइफ। पब्लिक की डिमांड है एचओडी सर अपनी स्कूल और कॉलेज की लाइफ की मेमोरीज शेयर करें। मैंने बताया ना कि स्कूल और कॉलेज में अभी भी लर्निंग ही कर रहा हूँ। क्या टास्क दिया था? अच्छा, मेमोरी की बात करना थी। मैं भी इसलिए नहीं सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा कि अभी तुम लोगों के साथ में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते तो मैं कर देता। आई वॉज ऑल्सो द नोटोरियस स्टूडेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट नोटोरियस स्टूडेंट। मैं एक बार का वाक़या याद दिलाता हूँ। जब मैं पीजी कर रहा था तो डॉक्टर संजू टोकेकर सर है, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी डायरेक्टर है अभी आईआईटी के, वो हमको C++ पढ़ाते थे और उस समय LCD प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, OHP हुआ करता था और इवनिंग में उनको टाइम नहीं रहता था तो इवनिंग में क्लासेस लेते थे 6:30 to 7:30 या 6:30 to 8:30 उनका कुछ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ करता था। तो ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था और उस समय हमारे फ्लिप वाले स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस जो DV में है वहाँ पर इस टाइप की टेबल्स और चेयर्स हुआ करती थी। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऐसे बैठते थे, फिर वो वाले, तो मैं उसमें था। तो अब अंधेरा करके जो है प्रोजेक्टर पे बताते थे उस समय, और सर बड़े सिंसियरली से समझा रहे थे। और एक श्याम हिसारिया करके हमारे स्टूडेंट है, वो भी बहुत टॉपर था स्टूडेंट का। तो वो क्या करते थे, पीछे से चौक फेंकना था तो शाम पे चौक फेंक रहे थे। तो एक नवीन शर्मा करके स्टूडेंट है, वो अभी राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन द चोइत्राम एज ए लेज़र ऑपरेटर है, अच्छी बड़ी पोस्ट पे हो। और तो वो चौक शाम पे फेंक रहा था और शाम ने एक दो बार देखा भी, मैं जो है थोड़ा दूर बैठा हुआ था। तो उसने बोला मैं सर को बताऊंगा इशारे से, और इधर अंधेरा हुआ करता था क्योंकि प्रोजेक्टर इस साइड चल रहा था। तो फिर एक और फेंका तो उसने इशारा कर दिया बताऊंगा। फिर जब तीसरा चौक आया और उसको लगा तो उसने बोल दिया सर। तो बोले हाँ, उन्हें लाइट खोला और क्या हुआ,
बोले सर पीछे से कोई चौक फेंक रहा है। तो टोकेकर सर ने सीधे ही बोला मनीष पुंडलिक। मैंने कहा सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर चौक आया तो तू ही बाहर जाएगा। तो मैं पूरे टाइम वो पढ़ नहीं रहा था, वो उसका हाथ रोक रहा था नवीन का कि भाई तू मत फेंकना नहीं था। तो स्टिल मैं अभी भी जब भी टोकेकर सर व्हेन ही इज विजिटिंग एज ए इन्वेटर्स या इंचार्ज के रूप में जब भी यहाँ विजिट करने के लिए जब भी आते हैं तो उनको हमेशा बोलता है कि मनीष तू अभी भी वैसे ही है या आप थोड़ा सिंसियर हुआ है। तो सर अब मैं प्रोफेसर हेड डायरेक्टर जैसा हो गया हूँ, तो मैं अब काफ़ी अच्छा हो गया हूँ, सोबर हूँ और सिंपल हूँ। तो ऐसी जो है वो हम लोग करते रहते थे। मैं एक और चीज़ अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि यहाँ टीचर्स जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दिस कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है मेरे पास में, मतलब निकिता जैन मैडम, निकिता शर्मा मैडम, निधि, इनफैक्ट कविता चौधरी मैडम इज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो स्टूडेंट के रूप में ही बैठे हुए नाजिया मैडम भी है, और इनफैक्ट राकेश सर भी जो है एमटेक यहीं से क्या हुआ है, गंदे सर है और विवेक राय सर है, और आई थिंक और कौन बच गया था, ऑलमोस्ट जो है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो आई डिड माई MBA फ्रॉम IPS एकेडमी। तो ये जो प्रोग्राम है वो हमारा जो है एज ए दोनों पार्ट में हम लोग अदा कर रहे हैं, एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी एंजॉय कर रहे हैं, और होप यू ऑल आर एंजॉइंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now we are moving forward for our last round. दिलबरा अपन के तू अपन तेरा। Guess the movie. खंडूजा सर आप ही बचो। Questions? Yes, sir. Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई MBBS। Thank you, teachers, for cooperating with us. Now, may I request all the female teachers to come on the stage for a group dance. पधारो साधु मरड़ी खिलबान बालम धारो गुरन गुरन गुरदा आसो मारो जीवड़ो गड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो पागलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे बाई सखेले चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलबान आओ साधु मरड़ी खिलबान। घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर
दी कुड़ी ओ चन्न दी कुड़ी ओ चन्न दी कुड़ी मंगला दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रैण सिंड्रेला ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया आ जेड़ा काला गंजड़ पाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया तेरे तक के गोरीए नैन चन्न दी कुड़ी मंगला दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रैण सिंड्रेला मस्तों का झुंड ओए हमण कुंड मस्तों का झुंड ओए हमण कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोल क्या करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे हवड़ करेंगे सुनसान रात अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे जीव जंतु सब सो रहे होंगे जीव जंतु सब सो रहे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू कांटा लागे ऐसा नाचो Fair enough बार और टीचर्स के लिए जोरदार तालियां मेरी बजा दी जाए, क्योंकि यही वो टीचर्स है जो दिन रात, वाकई जो कोई तो बोला था कि
वाकई टीचर्स की जो सैलरी रहती है वो आप लोगों को थर्ड सेम में मिल जाती है शायद। एमसीए थर्ड सेम में जब जाओगे आप तो आपको इट माइट बी पॉसिबल मोर देन दैट सैलरी भी मिल जाती है। तो टीचर्स का वाकई काम रहता है और मैं हमेशा से मेरी दिली तमन्ना रहती है कि टीचर्स जो रहते हैं वो नर्सरी का टीचर जो रहता है, मुझे पता नहीं अल्फ़ाबेट कैसे लिखते हैं, ए अनार का, तो पेरेंट्स तो करते रहते हैं, बट टीचर्स वो रहता है जो बोलना सिखाता है, लिखना सिखाता है, एटिकेट सिखाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट टू दैट टीचर्स। और जितना ज़्यादा हम लोगों को तो आप काफ़ी रेडीमेड मिलते हो ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन पे, पर मुझे उस आदिल था ना, आई थिंक आदिल ने बिल्कुल करेक्ट चीज़ बोली कि हमको सबसे पहले नर्सरी के टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपने नर्सरी के टीचर्स को याद करें, बीच में उनको मिलने के लिए जाते रहे, और कभी भी जब कभी उनको कभी भी ज़रूरत पड़े, यानी भगवान न करे उनको कभी आप लोगों की ज़रूरत पड़े, पर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग आपस में कनेक्ट होकर उनके वाकई काम में आए किसी भी तरीके से। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ से भी हो सकता है। आपको जो भी सपोर्ट हो सके अपने टीचर्स के लिए हमेशा सोचे, तो सही भाषा में जो है वो आप जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट कर पाओगे। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।